نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope you all are doing well. Asha, quick recap what we did last time. We discussed order of the last 10 surahs. मैं उसमें बिल्कुल भी recap नहीं करूंगा कि हमने क्या पढ़ा था क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा. And we have a lot of stuff to cover today. May Allah give me the strength to get through this today. क्योंकि ये अगर 2 सेशन में ब्रेक हुआ तो फिर मजा नहीं आएगा इसमें. तो ये एक ही उसमें कवर हो जाए तो इंशाल्लाह दैट्स द प्लान. ओके, आज का हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट इज सूरतुल यूसुफ. सूरह यूसुफ, नॉट सूरतुल यूसुफ. अल नहीं लगता इसमें. ओके, व्हाट स्पेसिफिकली इन सूरह यूसुफ? आई वांट टू शो यू. अच्छा, बाय द वे, प्लीज ओपन मुसहफ या कुरान एप्स या समथिंग. सूरतुल यूसुफ खोल लें क्योंकि उसके बगैर समझ उस तरह से नहीं आएगी. तो प्लीज डू मी अ फेवर और अपने अपने पास सूरह यूसुफ मुसहफ में खोल लें. Let me know when you have it open ताकि I can continue. Surah Yusuf is surah number 12. ठीक है? Okay, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Let me share my screen ताकि you guys can see this. So I want someone who can read it out loud. Zille, you want to volunteer? Yes, sir. अच्छा, read A. All right. Yusuf's dream, 4 to अच्छा, 6. हाँ, by the way, ये जो bracket में है ना, this is ayah numbers. So you can open it in the surah as you go. No need to read it out loud. Just अब सब जो लोग सुन रहे हैं, you guys can see it as you go. ठीक है? तो ayah number 4 to 6 में we're talking about Yusuf alayhi salam's dream. अच्छा, read B. Brothers plot against Yusuf. Read C and D. Minister's wife attempts to seduce Yusuf. Similar attempt by Egyptian ladies. अच्छा, अब go to the end and read K. Yusuf's dream interpreted. Read J. Brothers learn their lesson. Read I. Confession of ladies followed by the minister's wife. अच्छा, read A again. Yusuf's dream. And read K. Yusuf's dream interpreted. अच्छा, read B. Brothers plot against Yusuf. अच्छा, अब not Zille, someone else tell me कि B के बाद क्या आना चाहिए? इस सीक्वेंस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, B के बाद क्या बनता है? J. जज़ाकल्लाहु खैरन. क्यों बनता है J? What's special about J? Does anyone notice कि पैटर्न क्या है यहाँ पे? Feel free to open your mics, by the way. Because the brothers learned their lesson whereas they were plotting against Yusuf. Jazakallahu khair. So basically, Surah Yusuf is entirely mirrored in its events. बिल्कुल Surah Yusuf के शुरू में is Yusuf alayhi salam's dream. बिल्कुल end में that dream is interpreted. फिर ड्रीम के बाद देयर इज द ब्रदर्स प्लॉट अगेंस्ट यूसुफ अलैहि सलाम, जो वो पूरा प्लान करते हैं और उनको कुएं में फेंक देते हैं, राइट? और बिल्कुल सेकंड लास्ट इवेंट जो सूरह यूसुफ में हो रहा है, दैट इज दैट द ब्रदर्स लर्न देयर लेसन. फिर सी एंड डी को कंबाइन कर लेते हैं अगर, तो मिनिस्टर्स वाइफ अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस यूसुफ अलैहि सलाम एंड देन द रेस्ट ऑफ द इजिप्शियन लेडीज आल्सो अटेम्प्ट टू सेड्यूस यूसुफ अलैहि सलाम. और ऑपोजिट एंड पे जाएंगे तो थर्ड लास्ट थिंग दैट हैपेंस इज कि द लेडीज कन्फेस एंड देन द मिनिस्टर्स वाइफ कन्फेसेस कि उन्होंने ये किया था और यूसुफ अलैहि सलाम वाज इनोसेंट. Go to E. Yusuf alayhi salam was imprisoned. Go to H. Yusuf alayhi salam was released. Go to F. King's dream. Go to G. Interpretation of King's dream. तो जो कुछ in the first half of Surah Yusuf हो रहा है, in the second half exactly reversed order में उसका counter example आ रही है.
वो काउंटर हो रही है चीज. दिस इज लाइक just unimaginable beauty, and this kind of literary symmetry, it is, in my opinion, this is impossible to be done in. By the way, you guys remember na कि the Quran is oral tradition. Rasulullah recites it and it's final, it's done. He does not have a chance to edit it, to go back and change कि अच्छा नहीं इसको इस तरह नहीं इसको इस तरह कर लेना चाहिए था और ये आयत पहले ये आयत बाद में होनी थी. इसका ऑप्शन भी नहीं, इसकी जगह ही नहीं है. तो ही इज स्पीकिंग इट एंड इट्स डन, इट्स सेट इन स्टोन. और इतनी इंट्रिकेट पैटर्न्स, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन स्पीच. और इसीलिए फिर सूरह यूसुफ के एंड में आता है कि मा काना हदीथन युफ्ता, कि दिस इज नॉट मेड अप स्पीच. ये घड़ी हुई बात हो ही नहीं सकती ना. दिस इज इम्पॉसिबल. इंसान नहीं कर सकता ये बात. दिस इज डिवाइन. ठीक है. और द थिंग इज कि ये इस तरह के पैटर्न्स दे हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन द कुरान. अगर आप सूरह रहमान और सूरह वाक़िया को कंपेयर करें, सूरह रहमान सूरह वाक़िया दोनों अगर थीमेटिक या क्या कहते हैं टॉपिक वाइज आप डिवाइड करें तो यू कैन मेक 5 सेक्शंस आउट ऑफ इट. सूरह रहमान का पहला सेक्शन इज ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह इन कुरान. अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान. ठीक. सूरह वाक़िया का लास्ट सेक्शन is greatness of Quran. فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم. तो both greatness of Quran. Surah Rahman का second section is creations of Allah. Surah Waqiah का fourth section, second last section is creations of Allah. Surah Rahman का third section is judgment day and hellfire. Surah Waqiah का third section is judgment day and hellfire. Surah Rahman, the fourth section is first 2 levels of Jannah. उसको हमारे टीचर क्या करते थे, दिस इज इकोनॉमी क्लास जन्नत. तो सूरह रहमान फोर्थ सेक्शन इज इकोनॉमी क्लास जन्नत. सूरह वाक़िया सेकंड सेक्शन इज पीपल ऑफ द राइट हैंड, असहाबुल यमीन. तो असहाबुल यमीन कौन? जिनका हिसाब क्लियर हो गया वो जन्नत में जाएंगे, राइट. जन्नत, पीपल ऑफ जन्नत. सूरह रहमान का लास्ट सेक्शन इज, उसमें तस्करा आता है ऑफ अ वेरी स्पेशल वेरी एलीट लेवल ऑफ जन्ना, जो टॉप ऑफ द टॉप, फर्स्ट क्लास जन्ना. और सूरह वाक़िया का पहला सेक्शन मेंशंस साबिकून अस्साबिकून उलाइका हुमुल मुकर्रबून, कि द वंस हु, जो सबसे पहले जन्नत में जाने वाले होंगे वो अल्लाह के सबसे करीब होंगे. तो उनके लिए कौन सा होना चाहिए? द हाईएस्ट लेवल ऑफ जन्नत. एग्जैक्टली मिरर्ड patterns in 2 surahs. Same cheese. This kind of pattern, this kind of intricacy, humanly impossible. हो नहीं सकता, right? And this, इसको पढ़ना ना, ये when you see this connectivity within a surah and between surahs, तो ये सारी study, it helps us see the Quran as a book. Normally जब हम कुरान के साथ engage करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, we see the Quran and we try to understand the Quran as individual ayat या groups of ayat. हमसे on a wide scale या on a big picture level हम कुरान को as a book नहीं देख पा रहे होते. And that is because हमें immediately पढ़ने में ये लगता है कि भाई there is no sequence to it, there is no organization to it. sort of random बात है कि एक टॉपिक चल रहा था, फिर एकदम से कट होती दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, फिर एकदम से कट होती तीसरा टॉपिक शुरू हो गया, फिर एक सूरत बाद दोबारा उसी टॉपिक पे आ गए. इट सीम्स रैंडम, लेकिन that's the thing, it's not random. ये जो बात हमने लास्ट टाइम भी की थी, लास्ट सेशन में की थी, कि this kind of pattern or this kind of intricacy, it takes work to see. It takes lots of effort to really identify and appreciate. और अच्छा ये हुआ यहाँ पे, इन आयात का और इन सूरतों का आपस में ये कनेक्शन बनता था. And people have put a lot of work into this, and there is a lot still remaining. So this इसमें, to look at this, to study this, basically helps you identify the flow of the Quran. और flow से
कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि कुरान का जो रूट वर्ड है इट्स नॉट क़ुरआ, क़ुरआ मीन्स टू रीड। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट एक्चुअली क़ुरआ, इट्स क़ुरना। क़ुरना मीन्स समथिंग दैट फ्लोज, टू फ्लो कहते हैं क़ुरना। तो कहते हैं कुरान असल में क़ुरना से है, इट मीन्स टू फ्लो। और तफसीर में उसकी बहुत सारी implications आती हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ वैलिड ओपिनियन। तो इस फ्लो को आइडेंटिफाई करने इज what this study and this subject is for. खैर, हम एक्चुअली सूरह यूसुफ की बात छेड़ ही दी है, तो लेट्स लुक एट अनदर वर्जन ऑफ सूरह यूसुफ फर्स्ट। हमने कहा कि सूरह यूसुफ में देयर इज लिटरेरी बैलेंस ना, कि मिरर था, सिमेट्री थी, एक चीज शुरू हुई वो फिर एंड में आई, फिर जो सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, उस तरह से बैलेंस हुआ। देयर इज आल्सो अनदर रियली ब्यूटीफुल बैलेंस इन सूरह यूसुफ and in general in the Quran, which is a balance of characters. जो characters, जो personalities कुरान में आती हैं, उनकी जो traits कुरान बयान करता है, there's a very beautiful balance in them. What I want to mention today is हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की personality को लेके we will analyze एक side पे his humility और दूसरी side पे his confidence. ठीक है? अच्छा, let's discuss humility first. Yusuf अलैहिस्सलाम was actually, before I tell you about his humility, let me give you an example. Normally, kids, बच्चे जब when they're really excited, when they're nervous, they have a particular way they talk. और उसमें repetition बहुत होती है. For example, मेरी छोटी बहन है, right, वानिया. Now, let's say she goes out to play to the park or whatever. और थोड़ी देर में वापस आती है, उसके कपड़े सारी मट्टी मट्टी हो रहे हैं उसके कपड़े, और it's almost like वो शायद गिर गई थी या क्या हुआ, and she comes back and you're like, क्या हुआ वानिया, what happened? और she'll be like, वो हम खेल रहे थे और मैं स्लाइड पे थी और हम लोग भाग रहे थे और हम खेल रहे थे, और मैं उसके पीछे भाग रही थी और हम खेल रहे थे, और हाँ हम खेल रहे थे. You almost have to like stop her and be like, वानिया हौसला, क्या हो गया, बताओ तो. कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मारेगा आपको, बताओ क्या हुआ. You have to like sort of give her that reassurance के they start repeating things when they're nervous, कि नहीं ये डांट पड़ेगी मम्मा से, कपड़े गंदे हो गए या whatever. So they get nervous and they start repeating their stuff. To repeat constantly के, oh we were playing and we were on the swing and we were playing and yeah we were playing, right? So this is what kids do. This is very normal for them. Surah Yusuf में देखो initially जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के dream का तस्करा था. अच्छा, anyone remembers हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम's dream? What dream did he see? What dream did 11 stars and the sun and the moon prostrating to him, doing sajda to him, right? कि यूसुफ के शुरू में ही आता है वो इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीहि या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल-क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा. अच्छा, एक्चुअली आई वोंट read the whole ayah first. Look at this in the context. कि यूसुफ अलैहिस्सलाम has seen this dream. It's a very weird dream. कि 11 stars and the sun and the moon have done sajda to him. वो सजदा कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को. He's seeing that. He's like, what? Or now he's going to go tell his father कि या अबती, ए अब्बाजान, इन्नी रअयतु, I have indeed seen, मैंने यकीनन देखा है. It's almost like he's trying to, he realizes कि कितनी एक unrealistic सी और एक अजीब सी बात है कि तारे और सूरज और चांद वो सजदा कर रहे हैं, मेरी बात मानी नहीं जाएगी. It's almost like he doesn't consider it believable. तो इसलिए he's saying इन्नी रअयतु, बेशक मैंने लाजमन देखा, मैंने यकीनन देखा है. He's trying to convince his dad कि अब्बाजान मैंने देखा है actually.
अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्कमर, कि मैंने देखा है अहद 11 सितारे और चांद और सूरज, और सॉरी, और सूरज और चांद. एंड ही स्टॉप्स हियर. ही स्टॉप्स हियर कि मतलब चलो इतनी बात तो वाज फाइन ना, वाज एक्सेप्टेबल. अब इससे अगली बात जो है कि वो क्या कर रहे थे, वो सजदा कर रहे थे. दिस इज द एक्चुअली क्वेश्चनेबल पार्ट ऑफ द स्टोरी. क्योंकि किसी के लिए भी ये एक्सेप्ट करना कि जी मुझे सजदा किया जा रहा है, अब सजदा इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रेटनेस या ऑफ मतलब अजमत की वो है ना. मतलब हमारे उसमें तो शरीयत मोहम्मदी में सजदे ताजीम मना हो गया कि अब आप किसी इंसान को अजमत में या उसकी इज्जत में उसके एहतराम में आप सजदा नहीं कर सकते, उसकी ताजीम में. लेकिन पिछली शरीयतों में वो जायज होता था. तो इट्स नॉट के इट्स नॉट अलाउड, लेकिन वो सजदा करना या वो सजदा किसी को हो रहा है अगर, तो उस बंदे की ग्रेटनेस बयान हो रही है, उसकी अजमत बयान हो रही है. राइट. तो हज़रत यूसुफ के लिए आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी इट्स रियली हार्ड फॉर हिम टू एक्सेप्ट कि मुझे सजदा किया जा रहा है. और उसको एक्सेप्ट करना वन थिंग, उसको आगे बयान करना कि वो जाके अपने अब्बाजान को बताएं, अब्बाजान आपको पता है क्या, मुझे सजदा कर रहे थे 11 तारे और सूरज और चांद. दिस इज एरोगेंस. राइट. ही इज हम्बल. ह्यूमिलिटी है एक डाउन टू अर्थ नेचर है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही कांट से इट, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही हैज टू बी रीअश्योर्ड कि क्या हुआ बताओ आगे, 11 तारे चांद सूरज चांद, क्या हुआ, उनको क्या करते हुए देखा तुमने. तो फिर ही स्टार्ट्स अगेन. ही सेज रअयतुहुम ली साजिदीन, आई सॉ देम डूइंग सजदा टू मी. वो ऑलरेडी रअयतु कि मैंने देखा वो कह चुके थे. दोबारा ही स्टार्ट अगेन रअयतुहुम ली साजिदीन. इट्स ऑलमोस्ट दैट रेपिटेशन जो मैंने बात की थी ना, कि बच्चे जब थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, दे रिपीट देयर वर्ड्स, they need reassurance and they repeat their words. इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्कमर, कि बेशक मैंने देखा 11 सितारे और सूरज और चांद. And he stops and he has to start again. मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे थे. रअयतुहुम ली साजिदीन. Right. So this is, he is humble and he is aware, he is mature, he understands कि यार ये चीज प्रॉब्लमैटिक है. राइट. तो वो एक बच्चे की फितरत में भी होता है ना कि वो आइडेंटिफाई करता है कि यार इसमें कुछ इशू है. तो ही अंडरस्टैंड्स दैट. दूसरी बात ये, ही इज रियली स्मार्ट. बहुत सारे स्कॉलर्स ये लिखते हैं तफसीर में कि ही एक्चुअली अंडरस्टूड कि इस ड्रीम की इंटरप्रिटेशन क्या है. हाउ? क्योंकि इन द आया ही यूजेस द प्रोनाउन हुम. हुम यूज होता है आकिल जमा मुजक्कर के लिए. राइट. व्हाट इज what does aqil mean? For simplicity's sake, call it living things. ठीक. कॉल इट लिविंग थिंग्स. मतलब आकिल यूज होता है या तो इंसानों के लिए या फरिश्तों के लिए या जिन्नात के लिए. ठीक. अरबी ग्रामर में. तो ही यूजेस हुम हियर, ही डज नॉट यूज हा, ही डज नॉट यूज हुन्ना. जो यहाँ पे अगर इफ ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इट टू मीन कि इससे मुराद मेरे बाप और भाई और माँ हैं, तो ही वुड हैव जस्ट यूज्ड द नॉन लिविंग प्रोनाउन, बट ही यूज्ड हुम ही. तो ही हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड कि इस ख्वाब का मतलब क्या है. And Hazrat Yaqub alayhi salam recognized कि he understands. He recognized कि एक तो इसने ख्वाब देखा, दूसरा he had the humility and the maturity to understand कि okay, this is the sensitive part of it. उस पे वो रुक के उस पे एक hesitancy थी. और तीसरी बात, he understood. He already knew how to interpret that dream. So तो Yaqub alayhi salam, his father, not only did he reassure him, he also compliments him in the next ayah कि तुम्हें अल्लाह ताला सलाहियत देगा मजीद ख्वाबों को इंटरप्रेट करने की और समझने की. और देयर इज अ होल लिस्ट कि वो आगे उनको रिएश्योर करते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होगा आगे और तुम ऐसे होगा. ठीक है. डोंट डोंट पैनिक, डोंट बी अफ्रेड अबाउट इट. तो याकूब अलैहिस्सलाम also recognizes it and deals with it appropriately. अच्छा पता है इस मौके पे हमारे टीचर used to stop here and
give a whole lecture on parenting here. And I think it's worth repeating either, क्योंकि most of us, inshallah, soon, if not later, will be parents in our own lives, no? And there may or may not have been certain ups and downs by our own parents, lekin we should aim to fulfill any shortcomings in parenting with our children, no? तो यहाँ पे हमारे टीचर कहा करते थे कि this is basically Allah teaching you how to parent. And कहते हैं कि basically कि हम जिस क्लास में होते थे वहां पे it wasn't just मैं तो I was the youngest ना, there were mostly people in their middle age जिनके बच्चे थे, तो he used to talk to me कि आपके बच्चे आपके साथ इतना कंफर्टेबल होने चाहिए कि वो आपको आके अपने ख्वाब सुनाए. तो पूछते which of you fathers here ऐसे हैं, उनका ऐसा रिलेशन अपने बच्चों के साथ कि तुम्हारा बच्चा कोई ख्वाब देखे और वो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, वो आके तुम्हें सुनाए कि बजाय मैंने ये देखा. barely anyone ना. This is the parenting legacy जो कुरान रखता है. This is the parenting standard कि parenting का standard ये है. You should have that kind of relationship with your kid. और कहते हैं कि basically we need to be able to be the parents जो अपने बच्चों को सुने. ऐसा ना हो कि नॉर्मली क्या होता है, वो थोड़ा सा एक ह्यूमरस उसमें समझाया करते थे. वो कहते थे नॉर्मली आपके बच्चे आपके पास आते हैं, खास तौर पे बेटियां, क्योंकि बेटियां बोलती बहुत हैं. सर कहते थे मैं नहीं कह रहा, डोंट सू मी फॉर डिस्क्रिमिनेशन. तो कहते हैं कि बेटियां बोलती बहुत हैं, तो अक्सर फादर्स खास तौर पे उनको आके अच्छा बेटी कहानी सुना रही है कि पापा आज हम स्कूल में थे और हम लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और मैं बुक पढ़ी थी. मेरी दोस्त आई, उसने कहा कि तुम बुक क्यों पढ़ रही हो. मैंने कहा कि मुझे होमवर्क मिला है और मैंने कहा कि होमवर्क स्कूल में कंप्लीट करूँ ताकि घर जाकर ना करना पड़े. और फिर हम बातें करने लगे और फिर हमने टिक टेक टॉक खेला और फिर उसमें एक राउंड मैं जीत गई और एक राउंड वो जीत गई और दूसरे राउंड में वो जीत गई और फिर चौथा राउंड दोबारा मैं जीत गई. और फिर हम क्लास में चले गए और अ, अच्छा, और इस पूरे दौरानिए में जो फादर है वो सुन कुछ भी नहीं रहा. कहते हैं यस, ओ वाओ, वंडरफुल. और कहते हैं टीचर कहते हैं कि ये बात उस लड़की को भी बहुत अच्छी तरह पता होती है कि अब बस सुन मेरी एक ही नहीं रहे. तो फिर शी स्टार्ट्स मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन. कहती है ओके सो अब कैन आई हैव 500 रुपीज. लाइक ये सुन तो नहीं रहे. कैन आई आस्क अम्मा यू सेड के कैन आई टेल अम्मा कि यू सेड आई कैन हैव 500 रुपीज. ओके फाइन. वो जाती है अम्मा के पास. कहती है अम्मा बाबा said I can have 500 rupees and you're supposed to give it to me. और फिर उधर से अम्मा चीखती हैं क्या तुमने कहा था कि ये 500 रुपए ले सकती है मुझसे. और फिर वो कहती है, क्योंकि तुम वाइफ की भी नहीं सुनते तो तुम कहोगे this is like a humorous take on this ना कि this should not be the case. We need to be the parents who change this. Yes, your kids will tell you a whole bunch of non-relevant things. इनका कोई सर पैर नहीं है. They matter only in these 2 minutes जब we're talking. But what happens when you listen to them attentively is that you build the kind of connection that they come to you when they actually need help, when they're disturbed, when they're, faced with something that is out of their control, जो उनकी हैंडल करने के कैपेबिलिटी से बाहर है. They'll come to you then. अगर वो इनिशियल रिलेशनशिप सेट उस तरह होगा तो इट वोंट हैपन अगर आपने जिंदगी भर कभी उनकी सुनी ही नहीं. राइट. तो और पता है क्या, हजरत खास तौर पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उसमें किस्से में रिमेंबर कि ही वाज रेज्ड बाय हिज फादर ओनली इन द वेरी अर्ली इयर्स ऑफ हिज लाइफ. उसके बाद तो वो कुएं में चले गए और फिर ही वाज अ सर्वेंट एंड ही वाज देन अ प्रिजनर एंड व्हाटएवर. तो वो फादरली इन्फ्लुएंस उसके बाद था ही नहीं. इन द वेरी अर्ली इयर्स ऑफ हिज लाइफ, अर्ली चाइल्डहुड में वो था. उसके बाद इट वाज नो मोर.
आज when we look at a lot of child psychology and child crime and a lot of those things, बहुत सारे जजेस ने, बहुत सारे लॉयर्स ने, खासकर यूएस में, आई रिमेम्बर एक जज था, एक जुवेनाइल जज था, जुवेनाइल कोर्ट का जज था, तो उसने अपनी पूरे करियर खत्म होने के बाद ना उसने लिखा था, एक बुक लिखी थी उसने, और उसने कहा था कि द नंबर वन कॉज ऑफ जुवेनाइल क्राइम and kids being involved in gangs and in drugs and in other kinds of criminal activity is that they come from fatherless homes. Father, no father homes है ना, father influence कोई, fatherly influence कोई नहीं है घर में, वो तरबियत नहीं है. And that's what we see. It's almost a global thing now ना, कि जिन घरों में बाप का साया नहीं होता, उसके बच्चे more often than not बहुत गलत रास्तों पे आपको नजर आते हैं. That is just a fact of life. But Surah Yusuf tells us कि even just very small amount of fatherly influence in the very early childhood, if done right, and this is the big if done right, can make sure that a person remains on the right path even in his teen years. Yusuf al-Islam did not have fatherly counsel in his teen years. He was a child when he was dropped into the well, और फिर उसके बाद वहां से निकाल लिए गए, और फिर क्या कहते हैं, किसके घर में थे वो, अम, कौन से मिस्र का क्या था वो, he was गालिबन the finance minister or something, so some kind of minister, मुझे उसका टाइटल भूल गया, but he was in his house, उधर कोई fatherly influence नहीं, फिर he अजीज मिस्र, तो he was in his house as a servant, and then later he was a prisoner in prison, so he did not have fatherly influence in his teen years. That little bit of fatherly influence जो उनके बचपन का था, वो तरबियत काफी थी to make sure कि he does not falter in his teen years. Because remember, उन पे जो आजमाइश आई थी वो आसान नहीं थी. Imagine a young teenager, या maybe a young adult, maybe late teens, early 20s, ठीक है, approximately, अकेला एक घर में, and a beautiful, high class, powerful lady says to him, don't you want to have some fun? No one will know. And he says no. He backs off. कि नहीं, this is, मतलब forget fatherless homes, this is even जिनकी proper तरबियत हुई उनके लिए बहुत एक अच्छा challenging task है ये. तो that little bit of fatherly counsel, fatherly तरबिया जो उनको बिल्कुल बचपन में मिली थी, that made sure कि he knew right from wrong perfectly. उसके बाद when he goes to prison, वो अपने prisoners को, साथ वाले prisoners को फिर उसको बताते हैं कि जी I follow the religion of my dad, मैं अपने बाप का दीन फॉलो करता हूँ. Where did he get that introduction to his dad from? It was all early childhood. उसके बाद तो there's no contact, no introduction, no knowledge, nothing. वो सब वो early childhood training है that is reflecting in the entirety of his life, right? तो खैर हम बात कर रहे थे ह्यूमिलिटी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कि we saw one perspective से कि he is a very humble guy, right? He's very, अच्छा ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट क्या होता है? What's the opposite of humility? Arrogance. Jazakallah khair. अच्छा, does Islam endorse arrogance? Does Islam like arrogance? No. बल्कि arrogance के बारे में तो ये है कि arrogance, किबर, तकब्बुर, right? Arrogance के बारे में हदीस आती है कि जिसके दिल में राई के बराबर भी किबर होगा, तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा.
literally tiny. राई का दाना देखे कभी? मस्टर्ड सीड. It's tiny. इसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, वो जन्नत दाखिल नहीं होगा. That is the status of arrogance in Islam. But the issue is कि very often we confuse arrogance with confidence. ठीक है? Islam endorses, supports, encourages humility. Yes, ठीक है, agreed. There's no disagreement there. लेकिन to say कि anything, जब बहुत सारे लोग ना humility को इस extreme पे ले जाते हैं कि they're like you shouldn't praise people, you shouldn't compliment people, you should only praise Allah. आपको तारीफ सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए, इंसानों की करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले. अब दिस इज अनदर एक्सट्रीम एंड दिस इज अगेन रॉन्ग. ये तरीका नहीं है. ठीक. तो what happens is हम उसको इसलिए लेते हैं कि भाई because if you praise someone they might become arrogant, but that makes no sense. Even you look at Sira, Rasulullah used to praise his companions जो किसी एक चीज में अच्छे थे. हज़रत बिलाल की आवाज की कितनी तारीफ करते थे रसूलुल्लाह, और बहुत सारे सहाबा की बहुत सारी स्किल्स की तारीफ किया करते थे. तो humility does not mean कि we forgo human praise completely. Obviously एक बैलेंस, एक चीज मेंटेन होनी चाहिए. और हम बात करते हैं arrogance versus confidence की. Surah Yusuf draws the perfect balance here and gives us the complete measure कि क्या चीज arrogance में आती है और क्या चीज confidence होती है. ठीक. Before I go to the surah, I'll give you an example. One of my teachers, he spent a good bit of his life and his dawah work in the US. तो वो कहा करते थे कि यूएस की कुछ स्टेट्स में या कुछ मेन सिटीज में तो देयर इज माशाल्लाह से बहुत मुस्लिम इन्फ्लुएंस. देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स, बहुत सारी मसाजिद हैं, बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, द होल थिंग. और फिर कुछ स्टेट्स, कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे यू फाइंड लाइक 3 मुस्लिम्स, 4 मुस्लिम्स, वो भी ऐसे जो कहीं से आए हुए मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं या किसी ने वैसे रैंडमली घर बैठ के कन्वर्ट कर लिया सोशल मीडिया से व्हाटएवर. राइट. मतलब उसमें से अगर 3 मुस्लिम्स हैं तो 2 ऐसे हैं जिनको नमाज पढ़नी भी नहीं आती, वो इंग्लिश में नमाज पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक्स ही नहीं आती, उनको सिखाने वाला कोई है ही नहीं उधर. और कहते हैं 3 में से 2 तो ऐसे हैं जिनको नमाज पढ़नी नहीं आती, वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं. तीसरा ऐसा है जो हाफिज कुरान है. ठीक है. अब इमेजिन के जुमे का दिन आता है. अब क्योंकि ऑब्वियसली 3 मुस्लिम है पूरी सिटी में, तो यानी कि मस्जिद तो कोई भी नहीं होंगी, मस्जिद तो नहीं है. तो ये 3 जमा होते हैं जुम्मे को किसी एक यूनिवर्सिटी की एक क्लास में या कहीं किसी एक कमरे में, और ये कहते हैं कि यार जुमा पढ़ देते हैं, तो कौन पढ़ाएगा? तो ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ पे जो हाफिज है उसको पढ़ाना चाहिए. तो कहते हैं कि यार गो प्लीज लीड जुमा. तो कहता है नो ब्रदर, I'm no one. I I have no knowledge and I sin so much and I am not worthy of standing at the minbar of Rasulullah and I am a filthy human being and X, Y and Z. तो दूसरा बंदा उसको कहता है yes, I think so too कि you are a filthy human being, लेकिन the the other brother we have is going to lead Juma in English. So please, would you go and lead Juma? And it's like, so that is what the mistake this overly humble Hafiz makes is okay, he confuses confidence for arrogance. उसको ये लगता है कि भाई because I lack in knowledge and because मुझसे गुनाह भी होते हैं और ये भी होता है वो भी होता है, इसलिए I just cannot lead Juma. But we need to understand that there are situations where Allah subhanahu wa ta'ala asks you to step up, to come up and take the lead. ठीक है? क्योंकि obviously it's not to say कि जी I am the best person and मुझ में कोई flaw है ही नहीं, मुझ में कोई कमी है ही नहीं, and
everyone else should just sit back down. No, मुझे कमियां हैं, I know. मतलब if you wanna know my flaws, तो text my mother. She will give you a whole list. She probably could have written a book on it. But that is one aspect of it. The other aspect is कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सब छोड़ के यहाँ बैठ जाऊं और बोलूं कि नहीं, अब मैं तो दीन का कोई काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर एक्स वाई एंड जी फ्लॉज है। दिस वुड बी द रॉन्ग टेम्परामेंट टू टेक, क्योंकि मैं नहीं करूंगा और आप भी नहीं करेंगे और बाकी लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई फ्लॉ होगा। तो फिर काम कौन करेगा, राइट? एंड इफ वी लुक एट दिस फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ, एक्चुअली हमारे टीचर एक बात किया करते थे, ही यूज्ड टू से कि हमारे अरबी के टीचर जो थे ना, ही वाज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और वो लाइक ही हैड नॉट, आलिम नहीं थे वो, बट ही यूज्ड टू टीच अस अरबिक। और बंदे की क्या कमाल ग्रिप थी अरबिक पे। और he used to say कि me teaching here is not because मेरे पास इल्म बहुत ज्यादा है। There have been times जब मेरे सामने क्लास में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मुझसे ज्यादा इल्म रहा है, जिनको मुझसे कई गुना ज्यादा इल्म रहा है, जो कुरान को मुझसे बहुत बेहतर समझते थे। मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे मुझे पढ़ना चाहिए था, ना कि उनको पढ़ाना चाहिए था। बट अगर कोई मुझसे ये पूछे कि फिर मैं क्यों खड़ा होके बोल रहा हूँ, मुझे चुप करके बैठ जाना चाहिए, तो मैं असल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है, आई फर्मली बिलीव कि मैं जो काम कर रहा हूँ, माई मी टीचिंग या मी कंट्रीब्यूटिंग, पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। खलास, नो अदर जस्टिफिकेशन नेसेसरी। ठीक है, मैं आलिम नहीं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं इस ग्रुप में। आई एम 90% श्योर कि देयर आर सर्टेन पीपल जिनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, राइट? द पॉइंट इन मी टीचिंग हियर इज नॉट के जी मेरा पास बड़ा नॉलेज है और यहाँ पे बैठा हुआ कोई कुछ नहीं कर सकता। इट इज के हमारे टीचर ये बात करते थे, अगेन उनके कोट्स भी ऐसे हैं ना कि यू जस्ट, आई कुड राइट अ बुक ऑन इट प्रोबब्ली। तो वो कहते थे कि पता है मेरा पढ़ाने का एम क्या है, कि मैं पढ़ाऊं और कोई खड़ा होके ये कहे कि यार ये बंदा क्या, कितनी लो लेवल बातें कर रहा है, मैं इससे बेहतर पढ़ा सकता हूँ, मुझे इससे ज्यादा नॉलेज है। और वो आके पढ़ाएं और मुझसे एक्चुअली बेहतर पढ़ाएं, और मैं सुकून से बैठ सकूं कि हाँ अब इन्होंने काम संभाल लिया है, अब मुझे करने की जरूरत नहीं। आई डू नॉट वॉन्ट द लाइमलाइट। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोग ऑफ पीपल ऑफ दैट कैलिबर आर नॉट एक्चुअली स्टैंडिंग अप। अगर बार मुझसे ऊपर रेज हो जाता है तो आई गेट अ चांस टू सिट डाउन, आई गेट अ चांस टू वर्क ऑन माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ टीचिंग अदर्स। लेकिन क्योंकि द बार इज सेट एट मी, आई नीड टू बी वर्किंग। मैं सिर्फ अपना पढ़ता रहूं और अपनी अरबिक में पीएचडी कर लूं और बाकी सब जाए भाड़ में, तो ना मेरे इल्म का मुझे कोई फायदा और ना बाकी सबको, राइट? तो वो क्या करते थे कि द पॉइंट इज आई होप कि माई स्टूडेंट्स become so much more knowledgeable and surpass me wildly, और मेरा कोई काम, मेरी कोई यूटिलिटी बाकी ना रह जाए। आई जेन्युइनली होप दैट। बट क्योंकि अभी यूटिलिटी है, इसलिए मैं खड़ा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अल्लाह ताला उन पे अपना रहम करम का साया रखे और उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। जेन्युइनली अमेजिंग गाय, एन अमेजिंग गाय। खैर, कमिंग बैक टू सूरह यूसुफ का लेसन। ठीक है, वी सेड कि सूरह यूसुफ would tell us कि एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में बैलेंस क्या है। रिमेंबर कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम
ही गोज, मतलब वो सारा औरतों का स्कैंडल होता है, ही सेंट टू प्रिजन, ही कम्स आउट ऑफ प्रिजन, ही इंटरप्रेट्स द किंग्स ड्रीम, जो बादशाह का वो ख्वाब होता है कि 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें और 7 हरी-भरी बेलें और 7 सूखी हुई बेलें और फिर वो सारी कहानी। ही इंटरप्रेट्स दैट ड्रीम और उनकी इनोसेंस एस्टैब्लिश हो जाती है कि भई ही वाज़ इनोसेंट और उन ख़वातीन ने उनके खिलाफ उनको स्लैंडर किया था। और फिर अब ये ऑब्वियसली क्योंकि ड्रीम इंटरप्रेट हो गया है, तो ये समझ आ गया कि देयर इज़ अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस कमिंग और द नेशन इज़ एट थ्रेट, क्योंकि आगे कहत आ जाएगा, खाना नहीं होगा, फूड स्कैर्सिटी होगी, लोग भूखे मर जाएंगे, right? There's a major issue, there's a serious issue upcoming, and the right man is needed to attend to this situation, to handle this situation, वरना the nation could collapse. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम comes in, यूसुफ अलैहिस्सलाम looks around the court, वो देखते हैं सारे मिनिस्टर्स को, and he basically says कि ये सारे मिनिस्टर्स, they're idiots, hire me, make me your finance minister, basically. कहते हैं ना कि इजअलनी अला खज़ाइन अल-अर्द इन्नी हफीज़ुन अलीम, कि मुझे बना दें, make me your finance minister, make me responsible for your national treasury. और अच्छा, let me break this, the last part of the ayah वो मैं अभी नहीं बात करता, कहता है make me responsible for the national treasury, hire me, right? He nominated himself. किंग ने नहीं उनसे कहा कि जी आप आएं और हमारे ये इशू हैंडल करें. king didn't come to him and say कि oh please come and do this. वो खुद उठ के गए, और ये भी नहीं हुआ कि किंग गया और उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, आई एम जस्ट अ प्रिजनर एंड नो फेक ह्यूमिलिटी. वो जो हाफिज वाला पॉइंट है ना, that's not the right way to handle things. वो खुद गए, he nominated himself. He's like, hire me, मैं संभालूंगा. All of these people, they can't. इनके बस की नहीं है, मैं संभालूंगा, hire me. और what are his qualifications? वो ये बात कर रहे हैं कि hire me, make me the finance minister. ये qualifications क्या है? उन्होंने को बहुत elite यूनिवर्सिटी से फाइनेंस पढ़ी थी, या कोई बहुत हाई फाई जगह पे इंटर्नशिप की थी उन्होंने, या मतलब इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के कोई पीएचडी थे वो. नो एजुकेशन, नो ट्रेनिंग. वो कह रहे हैं माय क्वालिफिकेशंस आर नन ऑफ दीज. लेकिन ये काम करने के लिए यू डू नॉट नीड अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स. व्हाट यू नीड इज टू थिंग्स. उन्होंने क्या अपनी क्वालिफिकेशन की बताई? इन्नी हफीजुन अलीम. इंडीड आई एम रिलायबल. मैं चीजों की हिफाजत करूंगा, मैं अपने अमानत का पास रखूंगा, आई वोंट यू नो गो रॉन्ग विद दिस, इसमें मैं खयानत नहीं करूंगा. और अलीम, मैं अपने टास्क की नो हाउ रखता हूं. मैं जब कोई काम करता हूं तो उस पर चील की नजर रखता हूं, उस पर हर लम्हे क्या क्या हो रहा है मैं उस पर बिल्कुल अवेयर रहता हूं उसका. देखो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा. एंड आई हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ इट. फॉर्मल नॉलेज कोई भी नहीं है, पढ़ा कुछ नहीं है. He was a servant and then he was a prisoner. There's no space to learn ना. बट वो कह रहे हैं कि आई एम आदिम, इल्म रखने वाला हूं, आई नो माई टास्क. कैसे? एक इंटरप्रिटेशन ये की जाती है कि जी असल में व्हेन ही वाज अ सर्वेंट इन द हाउस ऑफ अजीज मिस्र, तो अजीज मिस्र उनका फाइनेंस मिनिस्टर था, तो उसके साथ रह रहे के ही, बिकॉज ही वाज अ स्मार्ट गाय, ही पिक्ड अप लेटेंट नॉलेज. क्या बातें हो रही हैं, किस तरह की डीलिंग्स हो रही हैं, किस तरह की चीजें हैंडल हो रही हैं, ही वुड पिक अप दैट नॉलेज. एंड जब वक्त आया तो ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ कि मैं ये काम करूंगा. ही डिडंट वेट टू बी कॉल्ड अपॉन. व्हेन ही वाज कॉल्ड अपॉन ही डिडंट से कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, नहीं आप किसी और को. नो, कॉन्फिडेंस इज कि जब एक काम की जरूरत है तो आई स्टेप अप
एंड आई से कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ ये काम। पता है क्या एरोगेंस होती अगर उस टाइम पे जब उन्होंने ख्वाब देखा था, तो ही वुड जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है मुझे सजदा करने करते होंगे, मैं बहुत आई एम अ ग्रेट गाय, मुझे सजदा करना बनता है। वो अगर उस सजदे को एक्सेप्ट कर लेते, दैट वुड हैव बीन एरोगेंस। उस ताजीम को एक्सेप्ट कर लेना, हाँ हाँ हूँ मैं बड़ा भाई, इसलिए सजदा कर रहे हैं मुझे, दैट इज एरोगेंस। लेकिन when it comes time to help people, when it comes time to serve, when it comes time to actually apply your capabilities and abilities in the right way, तो फिर उसमें अपने आप को वॉलंटियर करना और बढ़ चढ़ के आगे आना कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ ये काम, मुझे दो, आई एम द राइट पर्सन फॉर द जॉब, दैट्स नॉट एरोगेंस, दैट इज कॉन्फिडेंस। दैट इज व्हाट Surah Yusuf is teaching us कि we need to end this sort of self victimization culture के जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, कोई और आके हमारा मसाया कॉम्प्लेक्स जो है ना कि हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है, वो कोई और आएगा, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे हमारा काम करें। या थोड़े से दीनी मजहबी सर्कल में बैठे तो लोग आपको अक्सर कहते मिलेंगे कि जी हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो बस इमाम मेहदी आएंगे तो कुछ होगा, हजरत ईसा आएंगे तो कुछ होगा, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। भाई कैसे कुछ भी नहीं है? ऐसे थोड़ी, मतलब रसूलुल्लाह आपको ये सिखा के गए हैं कि जी बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, कुछ नहीं करने की जरूरत, हजरत ईसा आएंगे तो देख लेंगे। वो तो आके देख लेंगे, उनके साथ 12,000 का लश्कर भी होगा। इमाम मेहदी की नुसरत को 12,000 का लश्कर जाना है खुरासान से। खुरासान का इलाका आता है a good portion of Afghanistan, a good portion of Iran, and the western part of Pakistan. इस पूरे बड़े एक अच्छा बड़ा रीजन है, इसमें से कुल 12,000 जाने हैं। तो ये जो हम जैसे सोच वाले हैं ना कि जी इमाम मेहदी आएंगे तो देखा जाएगा, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये उन 12,000 में से नहीं होंगे, लिखवा लें आप मुझसे। उन 12,000 वो होंगे जो हमारी 24 करोड़ की आबादी है ना, उसमें से अगर सिर्फ 12,000 जाने हैं, तो 12,000 वो होंगे जो आज भी कुछ कर रहे हैं, जो कल भी कुछ कर रहे होंगे, और जब वो मौका आएगा तब भी कुछ करने वालों में से होंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, एक्सपेक्ट करें कल जब कुछ होगा तो हम उसमें शामिल होंगे। तो अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए। बट दिस इज द पॉइंट ना कि हमारा एज अ मुस्लिम उम्मा हमने एक बहुत कॉमन सा एक कल्चर ये बना लिया है कि वी जस्ट लाइक टू कंप्लेन, कंप्लेन करनी आती है हमें कि जी मस्जिदों में कोई अच्छी एक्टिविटीज नहीं होती, और कोई अच्छी मुस्लिम कम्युनिटीज नहीं है, और यू नो देयर इज नो गुड वे टू लर्न द कुरान, और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, ऐसा नहीं। भाई ऐसा नहीं है तो वर्क फॉर इट, क्रिएट दोस कम्युनिटीज। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है ना, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि अगर वो कम्युनिटीज एग्जिस्ट नहीं करती जो कुरान से जोड़े, जो इस्लाम से जोड़े, जो हक की बात करें, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम वो कम्युनिटीज बनाएं, वो ग्रुप्स बनाएं। डॉक्टर साहब कहा करते थे कि दीन का काम जो है ना वो अकेले नहीं हो सकता, वो किसी जमात के साथ, किसी ग्रुप के साथ मिलके होता है। तो आप देखें अपने आसपास कि जो जमातें काम कर रही हैं इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, वो कैसा काम कर रही हैं। अगर तो उनमें से किसी की आइडियोलॉजी, किसी की वर्किंग, किसी का यू you नो काम आपको पसंद आता है, समझ आता है, उनकी आप फिक्र से, उनकी फिलोसफी से आप रेकनसाइल करते हैं कि हाँ यार ये बात सही कर रहे हैं, तो फिर उनको ज्वाइन कर लें। और अगर आपको कोई भी सही नहीं मिलती, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि वो जमात बनाएं। ये एक्सक्यूज अल्लाह के पास नहीं चलेगा कि जी ताला कोई जमात थी नहीं, मैं किसको ज्वाइन करता, मैं किसके हाथ पे बैत करता, उसको था ही नहीं, क्या आर्गुमेंट नहीं चलता। डॉक्टर साहब अपनी जमात बनाने से पहले जमात इस्लामी में थे, जमात इस्लामी में रहे जब तक उनको उससे इतफाक रहा। जहां जमात इस्लामी से कुछ उसूली नजरियाती इख्तिलाफ हुआ, सर ने कहा कि ठीक है, आई विल सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम दिस। उन्होंने अपनी जमात बनाई, तंजीम इस्लामी डॉक्टर सार अहमद की जमात है, काम कर रही है। और डॉक्टर सार की टीचिंग थी ना, डॉक्टर सार के स्टूडेंट्स में से बहुत सारी तंजीम में रहे, बहुत सारी तंजीम ने ज्वाइन, बहुत सारों ने तंजीम ज्वाइन की, कुछ बातों पे इख्तिलाफ हुआ, उनका ठीक है हम अपनी बना लेंगे, तो कोई मसला नहीं है। तो बट द पॉइंट इज
कि ये काम करना ज़रूरी है। ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि जी कोई जमात या कोई ग्रुप या कोई अच्छे लोग ऐसे नहीं मिल रहे थे जो ये काम कर रहे हो तो इसलिए मैंने भी नहीं किया। आपकी पकड़ उतनी ही होनी है। आपने काम नहीं किया तो नहीं किया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक? व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ तंजीम्स? ये बहुत लंबा टॉपिक खुल जाएगा, इस पे इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। इस पे आई थिंक लास्ट ईयर हमने एंडिंग सेशंस में कुछ छेड़ा था। इंशाल्लाह इस पे आऊंगा मैं एक पूरा सेशन इसको डेडिकेट करूंगा कि व्हाट इज द मतलब आइडियोलॉजी क्या है इनके पीछे और इनका पर्पस क्या है और क्या है और क्या है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे पूरी। बट द कोर कॉन्सेप्ट बीइंग कि भाई अगर आपकी कंप्लेन ये है ना कि ऐसे ग्रुप्स ऐसी ये चलो छोड़ दो, तंजीमें छोड़ दो, सिंपल बात, कुरान सीखने के लिए, कुरान समझने के लिए, इस्लाम की बात करने के लिए, अच्छी कंपनी रखने के लिए आपको कोई ग्रुप नहीं मिलता। आपकी जिम्मेदारी है कि वो ग्रुप बने यार। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ बहरिया वालों को पता होगा कि हमारे यहाँ असेंबली में ना रोज एक कोट ऑफ द डे होता है, और ये बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड मैं शायद अपनी जिंदगी में को 50,000 दफा सुन चुका हूं। हर दूसरे बंदे को यही कोट मिलता है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आज तक को बन के नहीं दे रहा वो चेंज। तो दिस दिस एफर्ट, ये वाले सेशंस और जितनी मजहबी एफर्ट्स हो रही हैं, सबका कोर एम इज कि यार अगर हमें लगता है कि दीन का ये पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा तो हम अपनी कोशिश तो करें एटलीस्ट। हम ये बोल के बैठ जाएं कि जी अभी क्योंकि मेरे पास इतना इल्म नहीं है और मैं आलिम नहीं हूं अभी, और मुझे फिक्र नहीं समझ आती, और कुरान की तफसीर मैं खुद नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं करूंगा। फिर भूल जाएं कि ये काम होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के हालात ये हो गए हैं कि जो एक्चुअल नॉलेज वाले लोग हैं हम उनसे इल्म लेना पसंद नहीं करते। हमारी सोसाइटी एज अ होल, उलमा से और मौलवी हजरात से, कुछ उनकी अपनी करनी कुछ हमारी करनी, उसकी वजह से उनसे इतना दूर हो गए हैं कि अब हम उनको सुनना पसंद नहीं करते। तो द रीजन आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम हैविंग टू सिट हियर इज बिकॉज लोग उनकी नहीं सुन रहे, शायद मेरी सुने। राइट? उनकी नहीं सुन रहे, तो जो बात वो 90% कन्वे कर सकते हैं शायद मैं 1 या 2% कन्वे कर सकूं, लेकिन एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। शायद मेरी सुनकर और मेरी जबान से इस्लाम की कुरान की कोई बात सुनकर वो माहिर हो जाए कि हाँ चलो उधर भी सुन लेते हैं, इल्म के जो एक्चुअल जराए हैं उनसे भी हासिल कर लेते हैं। माई एम इज नॉट कि आप जिंदगी भर मुझे सुनते रहें। माई एम इज कि एटलीस्ट एक कनेक्शन मैं बिल्ड कर सकूं ताकि आई कैन ट्रांसफर यू गाइज टू द नेक्स्ट स्टेप। मेरा काम, आई एम नॉट अ स्कॉलर, मेरी इल्म की बहुत रिस्ट्रिक्टिव लिमिट्स हैं, मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो आई कैन ओनली डू सो मच। द ओनली पॉइंट ऑफ दीज सेशंस, हमारे यहाँ तंजीम में ना जब दावत की बात होती है तो दावत का फर्स्ट स्टेप काउंट होता है, या उसमें फर्स्ट स्टेप स्ट्रैटेजी जो है उसको कहते हैं तमस्सुक बिल कुरान, कुरान से जोड़ना, कुरान से रिलेशनशिप, कुरान से कनेक्शन। तो दिस इज बेसिकली जस्ट दैट, कि आपका कुरान से एक कनेक्शन बन जाए कि यार दिस इज नॉट जस्ट समथिंग जो मैंने अगर बहुत करना है तो सुबह थोड़ा सा खोल के तिलावत करके वापस शेल्फ के ऊपर रख देना है। इसमें कुछ और है, इसमें देयर इज गाइडेंस, इसमें देयर इज ब्यूटी, इसमें देयर इज एलिगेंस, वो देखनी है मुझे। आपके अंदर वो आग जब लगेगी ना, वो क्यूरियोसिटी, वो प्यास जब पैदा होगी, तो फिर इंशाल्लाह कुरान आपकी जिंदगी की बहुत से रास्ते रोशन खुद करेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि we can be the change that we need to see in the world, and we can be the change that Allah intends to have in the world. And अल्लाह ताला हमें कुरान से जुड़ने की, दीन से जुड़ने की, उसकी दीन की असल खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। If there are any questions, please let me know. From this session, yeah, from in general, पिछले जितने भी sessions, we have about 5 minutes, so we can take questions.
Nothing? No questions? Chale, in that case, why is fatherly influence more prioritized than... Wait, sorry, मैंने chat box बंद कर दिया था. Why is fatherly influence more prioritized than a mother's influence during early stages of childhood? As you read. Acha, it's, I would say, more या less कहना तो would be slightly wrong. I think the more emphasis on fatherly influence is क्योंकि मदर का ना एक बहुत, जो maternal bond की बात होती है ना, it is so strong कि किसी मदर के लिए अपने बच्चे को छोड़ना is practically impossible. It breaks her inside. And we see that in the world. मतलब बहुत कम होता है कि there's motherless homes, but बहुत common है कि there are fatherless homes. So I think that is sort of why emphasis इस पे ज़्यादा दिया जा रहा है. It's not कि one of them is more important. It's just कि issue जिसमें ज़्यादा हो सकता है, उस issue को reconcile करने के लिए guidance इसमें ज़्यादा दी जा रही है. That is my understanding. Wallahu alam, इसमें कुछ और aspect हो सकता है. Any other questions? Chale, in that case, if there are none, we will end the session here. I hope I was able to somewhat explain this to you in at least half as much beauty and efficiency जैसे हमारे टीचर्स ने explain किया था. Because honestly, हम जब पढ़ रहे होते थे ये चीजें, तो हमें पता नहीं चलता था क्लास कब शुरू हुई कब खत्म हुई. कहते यार, सर को रोक, हम ब्रेक भी अपनी छोड़ के हम सर के पास बैठते थे, नहीं सर और पढ़ाएंगे. ये चीज, this was so mind blowing for us, but inshallah I can at least do maybe Allah Ta'ala ki tawfiq se I can do some justice to this for you guys, and inshallah you guys can do much more justice than this ahead of me to whoever you convey this to, जो भी आपकी दावा effort में आता है. Just one last point I want to mention as far as dawa effort goes. मैंने शायद पहले भी mention किया था, but दावा का काम is not just limited to speaking. Allah subhanahu wa ta'ala made me a good speaker. मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ. Yes, मेरी बहुत सारी कमियां हैं, but अल्लाह ताला ने मुझे एक स्ट्रेंथ दी है. तहदीस बिन नेमा के तौर पे उसका बयान करना भी बनता है और उसका अल्लाह की राह में यूज करना भी बनता है. इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ. जरूरी नहीं है कि हर कोई यही काम करे. Not everyone is a speaker. Some people are writers. Some people are researchers. Some people are great managers and organizers. मुझसे कोई कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का बड़ी मेरी जान जाती है, मुझसे नहीं होता. मतलब the events I organize are oftentimes quite terrible, but that's because मेरी strength नहीं है मैनेजमेंट. किसी और की मे बी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है जो खुद बोल तो नहीं सकता बट कैन मैनेज 1,000 people events, तो वो काम करे. someone who can write is meant to write. someone who can research is meant to research. आपके दावा, all of this falls under दावा. ये सारा काम दावा का काम है. आप पे और मुझ पे फर्ज है दावा का काम करना. आप पे और मुझ पे फर्ज बोलना नहीं. स्पीकिंग हर किसी ने नहीं करनी. आपकी स्ट्रेंथ है, आप करें. नहीं है ना करें. लेकिन find your niche in da'wah. Find your strength in da'wah and put all your effort into it. क्योंकि ये असल में काम है इस दुनिया का. खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा. तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं. The session ended here, so I'm gonna end this and the recording as well. I hope you guys can somewhat understand this जिस तरह हमें सिखाया गया था. खैर, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.